Bismillahirrahmanirrahim and welcome to Kinder Stories. Today from the series of Quran stories for little hearts, I have chosen the book for you that is The Sleepers in the Cave. असहाबे कहफ नाम से ही पता चल रहा है कि इनकी कहानी भी सूरह कहफ में बयान की गई है. Let's start. It was about 250 AD during the rule of Roman King Decius that the teachings of Prophet Isa alayhi salam were spread throughout the region by his early followers. बहुत सालों पहले की बात है जब एक बादशाह हुकूमत करता था. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात ने फैलना शुरू किया. The people there were wrongdoers and the moon was treated as a god and worshipped. But some young men of a noble family accepted the new religion in Ephesus, an ancient city near the western coast of Turkey, whose ruins can still be seen. Decius took up arms against the new converts. उस ज़माने में लोग चांद को खुदा बनाकर उसकी पूजा किया करते थे, उसकी इबादत करते थे. लेकिन फिर भी कुछ अच्छे लोग मौजूद थे और उन्हीं में से कुछ जवान लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करना शुरू किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन को फॉलो करना शुरू किया. लेकिन उस ज़माने का जो बादशाह था उसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने उन लोगों के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिए. Due to their fearless preaching and willingness to give up everything so as to tread the right path, they were honored by the high status of being near to Allah Ta'ala. अब क्योंकि वो जो लोग थे वो बिल्कुल बग़ैर किसी डर के अल्लाह ताला का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना चाहते थे और सीधे रास्ते पर चलना चाहते थे, उनकी इस खसूसियत की वजह से वो अल्लाह ताला के बहुत करीब हो गए. When these young believers realized that the king's soldiers were about to capture them, they ran away from the town and they took refuge in a cave so as to escape the cruelty of the king. जब उन नौजवान लोगों को पता चला जो ईमान ले आए थे हज़रत ईसा की तालीमात पर जो अल्लाह ताला की तरफ से आई थी और उन्हें पता चला कि ये जो बादशाह है इसके सिपाही तो हमें पकड़ लेंगे, तो वो शहर में से भाग गए और उन्होंने एक गार में पनाह ली बादशाह के अजाब से बचने के लिए. As they ran, they prayed to Allah Ta'ala, Our Lord, show us your mercy and save our lives. They ran far into the wilderness until they found a dark cave. जब वो भागे तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए हमारे रब हम पर रहम करें और हमारी ज़िंदगियों को बचा लें. वो वीराने में इतना भागे कि उन्हें एक गार मिला और वहाँ पे उन्होंने पनाह ली. They entered in it with great caution and hoped that no one would guess that there was anyone inside. Then weeping they all prayed to Allah Ta'ala for his help. जब वो गार में दाखिल हुए तो उन्होंने इस बात की पूरी तरीके से तसल्ली कर ली कि हम बहुत ही एहतियात कर रहे हैं और किसी ने भी हमें अंदर दाखिल होते हुए नहीं देखा. और अंदर जाते ही वो लोग अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगे. Allah heard their prayers and when they lay down to rest, He caused a miracle to happen. With His supreme power over life and death, He made them fall into a deep sleep lasting 300 years. Not once during this time did they waken, and they never ate nor drank nor made any sound. अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुन ली और जैसे ही वो आराम करने के लिए लेटे अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा किया और वो मौजज़ा ये था कि अल्लाह ताला जो सुप्रीम पावर रखते हैं ज़िंदगी के ऊपर मौत के ऊपर, अल्लाह ताला ने उनको एक गहरी नींद सुला दिया जो कि 300 साल लंबी थी और इस सारे अरसे में ना ही वो जागे, ना ही उन्होंने कुछ खाया, ना ही कुछ पिया और ना ही कोई आवाज़ निकाली. They only turned from side to side in their sleep. Even their dog, Katmir, joined them in their long slumber with his legs stretched out across the entrance to the cave. This cave was so placed that not even a ray of light could enter it. Allah had also made it look so frightening that if anyone had come close to it, he would have felt afraid and run away. It was one of the wonders of Allah. उन्होंने इस अपनी लंबी नींद में सिर्फ करवटें बदली, वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से, और उनके साथ जो उनका एक कुत्ता था वो भी गहरी नींद सो गया टांगे फैलाकर गार के बिल्कुल दरवाजे के ऊपर जहाँ से गार के अंदर जाने का रास्ता होता है. इस गार को इस तरह से बना हुआ था ये गार कि उसके अंदर कोई भी सूरज की किरण भी नहीं पड़ती थी
और अल्लाह ताला ने इसको इतना हैबतनाक बाहर से बना दिया कि अगर कोई उनकी टोह लेकर या उनका खबर पाकर करीब आ भी जाता तो वो इतना डर जाता कि वो भाग खड़ा होता, क्योंकि ये अल्लाह ताला का एक मौजज़ा था। Time passed and the town had left change altogether. The cruel king had died and the present king had become a believer, a follower of the message of Hazrat Isa alayhi salam. The king and the people were believers in Allah and were no longer idol worshippers. During this period, Allah woke up the sleeping men. As they rose from their long slumber and stretched their arms and legs, one of them wondered, "How long have we been here?" वक्त गुजरता गया और जो शहर था, कस्बा था, वो बिल्कुल बदल गया। जो जालिम बादशाह था वो मर गया और उसके बाद जो बादशाह आया वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर ईमान ला चुका था। लोग बहुत अच्छे थे, अल्लाह ताला का कहना मानते थे और अब बिल्कुल भी बुतों की पूजा नहीं करते थे। उसी टाइम पीरियड में अल्लाह ताला ने ये जो लोग गार में सो रहे थे इनको जगाया, और जब ये जागे तो वो सोचने लगे कि वो कब से यहाँ पे सो रहे हैं। They thought about it, then said, "We have been here for a day or part of a day." They did not realize that they had been sleeping there for more than 3 centuries. They felt very hungry, so one of them crept out of the cave to fetch something to eat. He reached the town and went to a shop to buy some food. He paid the shopkeeper with a silver coin. वो सोच रहे थे कि या तो एक पूरा दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा वो यहाँ सोए होंगे। उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं था कि वो 300 साल तक यहाँ पे सोते रहे हैं। खैर, उनको बहुत भूख लगी थी और उनमें से एक शख्स जो था वो पैसे लेके कस्बे की तरफ गया, शहर की तरफ गया, ताकि कुछ खाने के लिए ला सके, और उसने दुकानदार को एक चांदी का सिक्का दिया। The shopkeeper was amazed to see such an old coin and suspected that this man had found some old hidden treasure. So he took him to the king, who immediately recognized that he must be one of those men who had been lost for more than 300 years. दुकानदार को ये लगा कि ये तो सिक्का कुछ बहुत ही पुराना है, ज़रूर इस शख्स को कोई पुराने ज़माने का ज़मीन के अंदर दबा हुआ ख़जाना मिला है। तो वो उसको बादशाह के पास ले गया, लेकिन बादशाह फ़ौरन पहचान गया कि ये वही उन्हीं लोगों में से एक है जो 300 साल पहले एक जालिम बादशाह से अपनी जान बचाकर भागे थे। By order of the king, the date they were lost, their names and their particulars had been engraved on a lead slab, which was kept in the royal treasury. For this reason, they also came to be known as the men of the slab. When the slab was taken out, it was confirmed that these were the very men who had run away from the city to save their lives more than 3 centuries ago. बादशाह के हुक्म से उस वक्त जब ये लोग गायब हुए थे, इनके नाम एक पत्थर पर लिख दिए गए थे और ये महल में ही रख दिए गए थे। और जब वो पत्थर निकाला गया जिन पर इनके नाम थे और उससे कंफर्म हुआ कि ये वो लोग हैं जो 300 साल पहले गायब हुए थे, they immediately became the center of people's devotion. The new Roman king Theodosius himself went on foot to see them and seek their blessings. When these young men died, a place of worship was built at their cave as a memorial. लोगों को पता चला कि इन लोगों पर अल्लाह ताला का ख़ास रहम है, तो उस वक्त का बादशाह खुद चलकर उन लोगों के पास गया जहाँ ये लोग गार में छुपे हुए थे, सो रहे थे। और जब ये लोग वफ़ात पा गए तो उनकी गार की जगह पर एक इबादत की जगह कायम कर दी गई। This story tells us that those who put their entire trust in Allah will be helped by Him in unknown ways. The story is also intended to tell us that there really is life after death. इस कहानी से हमें पता चलता है कि अगर हम पूरी तरह से अपना भरोसा अल्लाह ताला पर डाल दें और उसको कारसाज समझने लगें, तो अल्लाह ताला हमें इस तरीके से हेल्प करेगा, इस तरीके से हमारी मदद करेगा कि हमें उम्मीद भी नहीं होगी कि ऐसे भी हो सकता था। और ये कहानी हमें ये भी बताती है कि इस ज़िंदगी के बाद भी एक और ज़िंदगी है। जैसे अल्लाह ताला इन नौजवानों को गार में 300 साल तक ज़िंदा रख सकता है, वैसे ही हमें भी मरने के बाद दोबारा से इकट्ठा कर सकता है। दी एंड। आई होप कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ये पूरी सीरीज़ हमारे साथ फॉलो करना चाहते हैं
तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसे सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें ताकि हमारी स्टोरीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।